Very good morning, my dear student. How are you? Fine, sir. Very happy. Sakshi, good morning. Aditya, Shanvi, Shreya, Rudresh, Ankit, Lavkus, Govind, everybody. Very good morning to you all. Ans, Arya, Ayush, Arth, Harsh, Harsh Raj, Himanshu, Ishana, Khushi, Komal, Kushum, Lavkush, Mahi, Misha, Onam, Ritesh, Rudresh, Shakshi, Shantosh, Shanvi, Shaurya, Shivam, Shreya, Suraj, Vishal, everybody, very good morning. Very good morning to you all. Now, today, as in the last session, I am just showing the PDF, what was given, what was taught. See, here is the exercise 16B, and this was given the homework. So, how many of you have done this homework, and how many of you have got problem in solving this question? Tell me. If you have any question in this exercise, just go on asking the question, please. How many of you have solved exercise 16B? Please name. बोलो बेटा, कितने बच्चे हैं जो 16B कंप्लीट कर लिए हैं? प्लीज बोलिए बेटा. एम आई ऑडिबल? तो आप लोग ऑडिबल नहीं हो रहे हो, क्यों? कुशुम, किया है तुमने 16B? कोमल, खुशी? अच्छा बच्चों को एक बात मैं बताऊं कि आप लोग अभी जब आप पढ़ते हो ऑनलाइन, उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है तो उसमें आप लोग भूल जाते हो कि आप ऑनलाइन भी पढ़े हो. मतलब कि कोई कॉपी में काम होता है या नहीं आप लोगों का? हम्म, बोलिए. मतलब आप लोग समझते हो, ध्यान रहता है आपको कि हमें होता जो है है सर। तो होता है, तो काम हुआ है. विशाल, बोलिए बेटा. कैसे? मतलब बोलने का मेरा मकसद यही था कि मेरा होमवर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर होमवर्क नहीं हो रहा है मतलब कि हम बस ऑनलाइन जुड़े रहें, पढ़ते रहें, क्लास खत्म, काम खत्म, घूमना फिरना, खेलना कूदना, क्लास तो है नहीं, अपना घर में शुरू हो गया. तो अगर ये करते हो और इस तरह से अगर समय आपका जाता है तो ये बहुत बड़ा मिस है, बहुत बड़ी गलती है. तो बेटा इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, समझ गए? तो जब इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? होमवर्क होना चाहिए. जल्दी से मुझे अभी क्वेश्चन करके दिखाइए आप. 11 नंबर और 12 नंबर जल्दी बने. 11 12 डू इट इन कॉपी एंड शो इट. The first is of a question of parallelogram, the second quadrilateral, and how it is modified and how the terms are changed to make it parallelogram. See, do it now. 11 and 12. And when you complete this question, just unmute your mic and say, yes, sir. I'll be seeing your answer. Okay, do have your maths book and your copy, maths copy with you. Otherwise, it is not good. Okay, and I will say that open your camera and show your copy and turn over the pages so that I can guess the copy is of some particular subject or not. Okay. And when I used to say ki please on your camera, you need not to take more time. So just have your copy and book along with you without fail. And those who have already with them, just solve question number 11 and 12.
बोलिए बेटा। How many of you have mentioned that you have done that? Rudresh, did you complete that? सर होने वाला। Can you show it to me now? When I ask to show the answer, students started leaving meeting. Really, they are afraid of his or her name that it may appear, and they will fail to on the camera. The impression of those students is going worse. Okay, but no problem. Rudresh, the camera is not on, beta. Are you solving? सर अभी सॉल्यूशन हो रहा है। करो करो करो, आई एम वेटिंग। Solve it, then I am going to solve the same question. एक्चुअली मुझे लगता है मुझे बनाना चाहिए, आसानी से बनेगा। पहले देखिए बेटा, हियर आर टू पैरेललोग्राम्स, एक है PQRS और एक है PT U और V। यहाँ पे एंगल V दिया है 100 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका 100 डिग्री। तो बेटा अगर ये 100 डिग्री है तो ये होगा 80 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री, और ओपोजिट एंगल होता है इक्वल, तो ये भी होगा 100। कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, वेरी गुड। नाउ सी, आई एम सॉल्विंग। ये भी हो जाएगा 80 डिग्री बेटा, क्योंकि ओपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ये भी 80 होगा बड़े वाले रेक्टेंगल में। तो छोटे रेक्टेंगल में ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? ऑपोजिट एंगल। ये अगर 80 है तो ये भी क्या होगा? 80 डिग्री। और सप्लीमेंट्री होता है बगल वाला एंगल, तो ये एंगल क्या होगा? 100 डिग्री। तो एंगल एस भी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री, क्योंकि दोनों ही पैरेललोग्राम है और दोनों पैरेललोग्राम का एक एंगल कॉमन है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है EFGH, यहाँ पे EF और FG 6-6 का है। EF और FG एडजेसेंट साइड है बेटा, मतलब अगर आप EF और FG ये दोनों अगर इक्वल भी बना दो तो ये जरूरी नहीं है कि ये कैसा होगा, ये पैरेललोग्राम जरूरी नहीं है कि बनेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो गया। मतलब जो डाटा गिवन है क्वाड्रिलेटरल के साथ, उसके बाद आपको बताना है कि वो डाटा को ऐड करने से क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा। अब EF और GH के बारे में बात हो रही है,
ई एफ और जी एच बोल रहा है इसके पैरेलल है, ये जी एच, ये दोनों पैरेलल है। तो आप बताओ बेटा कि ये दोनों के पैरेलल होने से बाकी साइड के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम होगा? ये भी नहीं होगा। नो सर। बिल्कुल, तो आपको एग्जाम्पल देना होगा फिगर बना के। नंबर थर्ड, ई एफ और एफ जी इक्वल है, मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल है, और ई एफ और एच जी इज अ पैरेललोग्राम, सॉरी ई एफ एंड एच जी पैरेलल भी है। चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए ई एफ और एफ जी इक्वल है, और उसके बाद ये पैरेलल है एच जी के, ये है मान लो एच, और ये दोनों पैरेलल है। तो क्या ये पैरेललोग्राम है बेटा? नहीं, क्योंकि जो गिवन डेटा है उसमें ये दोनों साइड इक्वल है और ये पैरेलल है, पर ये साइड बाकी के लेंथ का जिक्र नहीं है, मतलब नहीं है। तो ये भी वाला पार्ट गलत हो गया। अब आते हैं हम ये वाला पार्ट, एंगल ई जी एफ दिया हुआ है। हम जानते हैं ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, और चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल का सम तो हमेशा होता है 360। तो ई और एफ, अब ध्यान दो, चलो हम लोग यहाँ पे ई एफ जी के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर ई एंगल को हमने माना है 70 डिग्री का, एफ है हमारा 110 डिग्री का, और जी है हमारा 70 डिग्री का, तो ये दोनों तो अपोजिट एंगल इक्वल मिल रहा है, पर इसका अपोजिट क्या होगा वो निकालना होगा। ठीक है सर जी इज इक्वल टू 110 डिग्री। बेटा जी, अच्छा जी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है 110, और जी भी दिया हुआ है 110। अच्छा ई जी और एफ ये दिया हुआ है, तब तो संभव ही नहीं है बेटा, यहाँ ऑपोजिट एंगल इक्वल नहीं है 70 और 110, तो ये कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। तो मतलब इन सारे क्वेश्चन में जब इतना देखे, तो एक बार कोई बच्चा मुझे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लिखवाया है, और मैंने तो बहुत बड़ा लिखवाया नहीं रुद्रेश, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको मैंने बहुत बड़ा लिखवाया है, आई रिमेम्बर। तो क्या मैं एक बार उसको देख लूं, एक बार उसको पढ़ लूं और जान लूं कि वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैंने जो लिखा है वो क्या है, और क्या आप लोगों को याद है? कोई बच्चा ये क्लेम करेगा कि सर आपको मैं बताऊं कि मेरे को पूरा याद है? तो कौन कौन बच्चा है जो ये क्लेम करता है कि हाँ उसे याद है? बोलिए। याद है? ज्यादा नहीं, कम से कम 7-8 भी होगा तो बोलो। चलिए अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए। पैरेललोग्राम टू पैरेलल साइड। हाँ कौन बोलना चाहता है बताइए, कौन बोलना चाहता है बोलिए। सर पैरेललोग्राम। ना ऑन करना सर होगा, कैमरा ऑन करना होगा रुद्रा, कैमरा ऑन करना होगा रुद्रेश, then after I can listen and everybody will get to know that you have learnt. Please on your camera and then you can say. याद है पूरा? खाली है? खाली हैं आप? हाँ ये पूछ रहे हैं। अच्छा बड़े वाले बच्चे सबका वैक्सीनेशन हो रहा है तो उनका क्लास ऑफ है क्या? हाँ कौन बोला? नहीं पूछ रहे हैं, नहीं ना। चलो तो रुद्रेश तुम्हारा भाई आके ले लिया है, वैक्सीनेशन करा लिया है क्या? नो सर।
क्यों? सर अंडर 15 है। अंडर 15 है। चलिए, हाँ जी बच्चों, तो जल्दी जल्दी बताइए मुझे, याद अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। चलिए देखते हैं हम। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 है रोम्बस, और रोम्बस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रोम्बस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कोई बच्चा बताए? साक्षी बोलो बेटा, रोम्बस का जो जो प्रॉपर्टी हम लोग को पता है वो सब एक बार रिपीट करो। तो जो नहीं बोलोगी वो मैं बोलना चाहूंगा। बोलिए, रोम्बस की प्रॉपर्टी बताइए बेटा। Where diagonal bisect each other at 90 degree. एक प्रॉपर्टी हो गया रोम्बस का, एडिशनल टू पैरेललोग्राम। और बोलिए, गुड गुड। रोम्बस के डायगोनल Opposite angles are परपेंडिकुलरली बेस। equal. बिल्कुल, ये तो पैरेललोग्राम का है बेटा, ये नहीं बोलो। मुझे वो बताओ जो पैरेललोग्राम का नहीं है। ऐड है, पैरेललोग्राम All से sides are एडिशनल है। equal. ऑल साइड्स आर इक्वल, सही है। एक पॉइंट ये हो सकता है रोम्बस में, एक तो आपने बोला ऑल साइड्स आर इक्वल, सही है। दूसरा आपने बोला कि डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। तीसरा बोल दो, क्योंकि मैं अगर बोल रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब है इंपॉर्टेंट। बोलो, तीसरा बता दो मुझे। यही तो है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था। बोलो बेटा। सर डार्क इंटरसेक्ट। हाँ हाँ, बोलिए 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 रुद्रेश। Sir, यू डिडंट गिव योर कंट्रीब्यूशन टू दिस क्वेश्चन। कुछ कंट्रीब्यूट करो इस क्वेश्चन में। the two diagonal of a rhombus are perpendicular. बेटा वो तो हो Sir, गया। uh, diagonal of सर डायगोनल rhombus इंटरसेक्ट ईच bisect अदर। opposite. कौन बच्चा है ये, नाम बताइए। डायगोनल ऑफ Sir, Sakshi. साक्षी, तुम तो कमाल कर दी बेटा। साक्षी बाइसेक्ट के बाद कुछ बोली नहीं, क्यों? डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, समझ गई? तो अगर Sir, इस बोले थे opposite angles. एंगल्स नहीं सुन पाया था मैं, यहाँ पे आवाज नहीं आ पाई थी, कोई बात नहीं। आई बाइसेक्ट तक सुना था, मुझे अच्छा लगा। देखो, स्क्वायर और रोम्बस दोनों के लिए लिख लो, जरूरी है। अच्छा 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 अच्छा, ये तो लिखा हुआ है, क्या बात है। यहाँ से याद की, आप बोली अपने मन से, बोलो साक्षी, यहाँ से देख के बोली या? सर आपने बताया था ना कुछ दिन पहले। हाँ, ये लिखा हुआ है यहाँ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। डायगोनल ऑफ रोम्बस भी और भी, ये दोनों के डायगोनल जो है ना, ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये जनरली हिडन रह जाता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों को ये पता चले। ठीक है, तो थैंक यू, आपने बोला, अच्छा लगा मुझे, यू आर टू गुड। चलिए बेटा, अब आते हैं हम ये क्वेश्चन के बाद। ये दिखता है कि ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, और टोटल 120 है तो ये भी टोटल 120 होगा, और डायगोनल इसको भी आधा आधा काटेगा तो ये दोनों 60 60 होगा। अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री होता है और अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये भी 60 होगा। तो हमने ये नहीं देखा कि एंगल कौन सा पूछ रहा है, हमने ये देखा कि सारे एंगल को ही निकाल लेते हैं ना, तो जो पूछ रहा होगा वो तो आ ही जाएगा। तो हमेशा इस रूल में रहो कि हमें सारे एंगल निकालने आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए। तो ये होगा, तो साक्षी को मैं यहाँ पे नाम लिखूं,
साक्षी एस एच लिखती हो या एस लिखती हो केवल? सर ऐसे। एस एच लिखती हो? एट सेक्शन ए में हो ना साक्षी? यस सर। तब तो सही है, वेरी गुड। हियर इज योर सर्टिफिकेट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। चलो, now let's do it. Angle AOB is given and this is a rectangle. See, there are three quadrilaterals, three types of quadrilaterals whose special types of quadrilaterals whose diagonals are equal. तीन तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ऐसे होने के लिए हम चार क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं बेटा। तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल होते हैं। वो कौन कौन से फिगर हैं जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं बेटा? एक तो रेक्टेंगल है, दूसरा स्क्वायर। स्क्वायर है, तीसरा नाम बोलना जरूरी है, वो देखते हैं आप लोग में से कौन कौन बच्चा बोल पाता है। तीसरा नाम बोलिए सोच समझ के। कुछ डायगोनल्स आर इक्वल, बोलिए प्लीज। रोम्बस। सॉरी बेटा, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, बोलिए। सर पैरेललोग्राम। ना बेटा ना, पैरेललोग्राम के भी डायगोनल इक्वल नहीं होते, ऐसे नहीं कर सकते। सर रेक्टेंगल। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इज द राइट आंसर। कौन बोला ये? सर कौन सा? यही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कौन बोला? सर साक्षी। क्या बात है, थैंक यू साक्षी, ये सही आंसर है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज द राइट आंसर। बेटा अच्छा करती हो आप, याद रखो ये सब चीज, बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है? इट इज रियली अप्रिशिएटिंग, गुड जॉब, गुड जॉब साक्षी। एंड आई ऑलवेज वांट यू टू हेल्प, कि आपको जहां दिक्कत हो वहां आप लोग करो, ठीक है? सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट you all can join, wait, very very important। हाउ आर यू तानिया, सूरज, श्रेया, श्रेष्ठा, शिवम, संतोष, साक्षी। साक्षी लेकिन तुम्हारा स्पेलिंग छोटा है, वो है बेटा साक्षी में ऐसे। अच्छा, साक्षी कुमारी एंड साक्षी गौरव आर टू स्टूडेंट ना। चलो, एंड हर्ष। बेटा ऐप अपना डाउनलोड कर लो तुम लोग, समझ गई? तो उससे कुछ कुछ टेस्ट मेरे तरफ से भी मिल सकेगा, ठीक है ना? सो आई से यू ऑल कि तुम्हें डाउनलोड कर लेना चाहिए, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस। सर किए हुए। हाँ किए हुए हो, पता है बहुत सारे बच्चे, तो इसमें भी आपको चीज़ें जो है ना वो कुछ नई नई मिलते रहेगी, ठीक है? और कुछ कुछ ऐसे क्लासेस हैं जो मैं लेता हूँ, अब बच्चे एक सब्जेक्ट के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन से भी। क्लास 8 का वो अलग एक स्टार्ट है, तो ऐसे भी जुड़ना चाहे कोई बच्चा तो जुड़ सकता है। तो सर कौन सा ऐप? यही नाम है उसका, भी सेम नेम है बेटा, जो मैंने अभी टाइप किया यही नाम है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, होम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। एंड यूट्यूब का चैनल भी है, इसको भी आप लिंक कर सकते हो, समझ गए? तो ये जो है आपको दिख जाएगा, या आप देखना चाहो तो यहाँ पे आप यूं देख सकती हो। वेट,
So many of the videos in the playlist you may find, and you can add it to you. Okay, no problem at all. चलिए, now क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हमने देखा? रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर द क्वाड्रिलेटरल होल। ये मैंने क्वेश्चन प्रूव किया था कल, याद है? ये क्वेश्चन जो मैंने प्रूव किया था यहाँ पे है ये क्वेश्चन। यस सर। और आप लोग को ये आप लोगों ने उतारा भी था। अगर जो बच्चे नहीं उतारे हैं वो इसको उतार सकते हैं। और यहाँ पे बस वो प्रॉपर्टी है कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। इस प्रॉपर्टी के कारण ही हमारा ये ट्रायंगल में ये एंगल 90 बना और हमने ए बी, यहाँ पे ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी सी डी ए डी, चारों साइड इक्वल। देखो हमने यहाँ पे ये चारों साइड इक्वल का है और चारों साइड इक्वल साइड को हमने जोड़ा है और एक इक्वल साइड का वैल्यू निकाला है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर यहाँ 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, हमने x को देखिए आप, ये x जो है आपका, इसको हमने OA माना है, OC माना है, और y को हमने BD OD और OB माना है। तो यहाँ हम पुट किए और हमारा प्रूविंग हो गया। तो अगर बच्चे प्रूव नहीं किए हैं तो वो कर सकते हैं। चलिए आगे आएंगे। फिर हमने ये भी किया था नहीं, ट्रू फॉल्स वाला 17 क्वेश्चन। चलिए आप लोग बता सकते हो, जल्दी बनाइए तो ए का वैल्यू फटाफट। 17 नंबर क्वेश्चन, ए का वैल्यू बनाइए। सर ए का वैल्यू तो 3 आएगा। ए का वैल्यू क्या आया? 3। सर 3। देख लेते हैं। 7 सर। हाँ बोलिए बेटा। 7 आएगा। ए का वैल्यू आपका क्या आया? वैल्यू 7 आएगा। 7 होगा। देखिए बेटा, स्क्वायर का Yes, सारा sir. साइड इक्वल होता है, तो PQ जो है वो QR के इक्वल होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5a minus 17 is equal to 2a plus 4. इक्वल टू 2a plus 4। तो 5a minus 2a is equal to 4 plus 17, that is 21. 3a is equal to 21, तो a का वैल्यू आ जाएगा 7, जो है वो है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है उसका साइड का लेंथ। तो 7 2 जा 14 प्लस 4 18, क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। सर मेरा आंसर 18 आ रहा है। 18 आ जाएगा सर। और 7 5 जा 13 17 यानी 18, तो ये बिल्कुल सही गया। तो मतलब स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये हमको पता चल रहा है। ये है 17 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबली इस एक्सरसाइज का। अब है ओरल असाइनमेंट। तो मुझे जरा आप लोग ओरल असाइनमेंट से क्वेश्चन देख के बोलो कि क्या कोई ऐसा भी है क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं बन रहा है या डाउट आ रहा है, पूछिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप पूछ सकते हैं। सर 70 नंबर का 2 आंसर दे रहा है। 70 नंबर के दे रहा है 2 आंसर, एक 18 और एक तेरा 80√2। नहीं समझ में आया मुझे आपकी बात। सर 70। इस क्वेश्चन का आंसर 2 दे रहा है 18√2, तो इसमें एक डायगोनल भी निकालना है ना, इसलिए। अच्छा, डायगोनल भी बोल रहा है क्या क्वेश्चन में निकालने के लिए?
यस सर, पी अगर आर शायद, अगर पी आर डायग डायगोनल। अच्छा, अगर डायगोनल बोल रहा है बेटा तब तो करना ही पड़ेगा। अगर डायगोनल बोल रहा है तब तो निकालना ही पड़ेगा। समझ गए? पाइथागोरस थ्योरम। हम्म। तो डायगोनल निकालने का तरीका सर बता दो। पाइथागोरस थ्योरम से निकला। क्या बेटा, फिर से बोलिए। फाइंड द सर लेंथ ऑफ। पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ, लेकिन एक बार मैं देख डायगोनल के लिए बोल रहा है कि नहीं ना। स्क्वायर फाइंड लेंथ पी एस, पी क्यू आर एस, पी आर, पी क्यू आर। हाँ, ये जो पी आर है, पी एस तो 18 होगा। तो अगर स्क्वायर बना लेते हैं हम यहाँ पे, पी क्यू आर एस, तो ये स्क्वायर का ये 90 हो गया, ये हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए ना, आप लोग याद कर लें इस फॉर्मूला को। चलिए, diagonal of square is equal to √2 into side। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा हो गया hypotenuse of isosceles right angled triangle is √2 यहाँ क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइड। अब ये देख लो यहाँ पे कैसे हमने ये किया है। देखिए, ये है एक स्क्वायर जिसका सारा साइड इक्वल है, और हर एक साइड अगर ए का है तो इसके डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए। यहां तक सही है बच्चों? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसी स्क्वायर के मैंने दो साइड को डिलीट करना है। चलो, ये मैंने डिलीट किया, इसके दो साइड को। नहीं हो रहा है मुझे, ये मैंने किया। अब बोलिए बेटा, स्क्वायर का मैंने सिर्फ दो साइड डिलीट किया, बाकी चीजें तो वही है ना। तो हम लिख सकते हैं ना इसको भी, ये फॉर्मूला। बोलो, कोई कोई बदलाव तो हमने किया नहीं है, अभी भी चीज वही रह गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या? बोलो। यस सर। तो ये चीज क्या इन दोनों फिगर में हाइपोटेनियस, इन दोनों फिगर में कोई बदलाव किया क्या मैंने? ये लेंथ बदलेगा क्या? अगर मैं ए बी सी बोला तो ये वाला साइड वही रहेगा ना, इसीलिए हमारा फॉर्मूला दोनों में क्या होगा, सेम। स्क्वायर का डायगोनल बोल दो या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बोल दो, बात बराबर है। क्लियर है बच्चों? तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा इसको। यस सर। ठीक है, टाइम हो चुका है बच्चों।